देख रहे हैं अपना मनपसंद चैनल और करगिल का सुपरफास्ट चैनल STV लद्दाख, आवाज करगल। Bank of Sulu River, which is the peace and contentment harbinger. Surrounded by snow-clad peaks, summer siblings playing hide and seek. Surrounded by snow-clad peaks, summer siblings playing hide and seek. People are peace-loving by nature. In fact, this is the part of this land's culture. People are peace-loving by nature. In fact, this is the part of this land's culture. Exhibited through different groups. This land is the home of many ethnic groups. The same is exhibited through different groups. Culturally rich, climatically cool, history of the land reveals Joe's rule. Culturally rich, climatically cool, history of the land reveals Joe's rule. Chief guest of the occasion, Honorable Chief Executive Councillor, Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil, Shri Feroz Ahmad Khan Sahab, Honorable Executive Councillor for Tourism, Shri Kunsuf Tashi Sahab, worthy Deputy Commissioner, and other distinguished guests, and our esteemed guests from different parts of our country. Very good evening to all of you. With great joy and immense exultation, I feel privileged to extend my warm welcome to all that present here for the celebration of Ladakh Winter Carnival. Our invitation and giving a reason to so many faces to smile. Engineer Kunsuk Tashi Sahib to kindly come up here on the day for welcome speech. Honorable Executive Councillor Shri Kunsuk Tashi Sahib. Of second Ladakh Winter Conclave 2021, the Kargil event, Shri Feroz Ahmad Khan Sahab, Honorable Shri Ali Mohammed Chandan Sahab, Honorable Executive Councillor for Health, Aga Saeed Arman Sahab, Honorable Executive Councillor for Social Welfare, Deputy Commissioner or Chief Executive Officer LSDC Kargil, Janab Santosh Sukhdev ji, Additional Deputy Commissioner Shri Motu ji, Additional Superintendent of Police Iftikhar Sahab, District Officer Sahiban, distinguished guest of today's conclave, an ambassador from Vina World, who is also President Shri Anil Kumar Rajput ji, Secretary ADTOI, Shri Abhijit Raja Patil ji from Raja Rani Travels, that I think most of us must have seen in Kashmir, all over the Shikara, he has written from Raja Rani. So the guy from Raja Rani, the proprietor, is also with us here. Shri Vardai ji from Sarhat Pune, who have organized here with Mr. Hamza the international marathon few years back in Kargil. Shri Mohammad Ashraf Saab, President all Kargil Travel and Tour Trade Associations and their members. He is also co-host of today's conclave. My friend Mr. Mohammad Hamza, a senior and experienced travel fraternity of Kargil, who is staying in Delhi most of the time. Julay Salam and Namaskar to all of you. It's my privilege to welcome you all on behalf of Ladakh Autonomous Hill Development Council Kargil for the 3-day Ladakh Winter Conclave, which is being held simultaneously at Leh and Kargil. Tourism potential of Ladakh, particularly focusing adventure sport and cultural revival, which is yet to explore. During last 2 days, you had visited and experienced the charms of Kargil, such as world famous rock Buddha statue at Mulbek, Apati and Sanku, winter tourism in the winter sport in the laps of Tiger Hill and Tololing in Dras, a very well-known destination in the country. Dras is also elsewhere for Jammu and Kashmir. As I heard some of you have been saying yesterday at Dras that it could be projected as a mini Switzerland. As regions like Dras, Suru, Zanskar remain under snow from December to April for a very good 5 months. We have the War Memorial Museum at Dras, Hundurmal village at a walking distance nearby town from where one can have a net-eye view of Pakistani village. In the laps of Nunkundi, the scenic beauty of Suru Valley is similar to Gulmarg and Sonamarg. The Aryan and Chitan Valley, known for its unique cultural heritage, and Zanskar Valley, also projected as the hidden treasure of Ladakh, is also available in Kargil. आज मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है कि हम सब एक बार फिर कारगिल ये लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव के सिलसिले में कारगिल सेलिब्रेशन के अवसर पर हम सब मौजूद हैं यहाँ पे। इस मौके पर मैं केंद्रीय शासित राज्य
के उपराज्यपाल सुश्री आर.के. माथुर साहब का, हिल डेवलपमेंट काउंसिल कारगिल के चेयरमैन जनाब फिरोज अहमद खान साहब का, टूरिज्म डिपार्टमेंट लद्दाख का और बिलखुसूस जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी साहब हैं सब एक Adventure tourism in Kargil has got 10 multi-day trekking trails and many more short and day hikes. It also has a well-known destination for mountaineering and rock climbing with a range of high peaks including the Noon and Khon. The flora and fauna So I'd like to request you, yes, assured you that they can bring in a film, 30% of a film component to be taught here, if you all can take care of their equipment to be flown in. Thank you, sir. So once again, hope for better. So now once again our distinguished guests will be entertained by presenting a cultural program. So as we all know that it are going to present a cultural program here. So group from Bokkali will present the cultural program here. Thank you.
cultural program was presented by the troop from Butkarbu belonging to Turki ethnic group. So next, without wasting your precious time, I would like to invite here Shri Vaibhav Wagh Trumps to present your views. Thank you very much, sir. सलाम वालेकुम, नमस्ते. आणि सगळ्यात महत्वाचं आमच्या सुखदेव साहेबांना एक मनापासून नमस्कार. लडाखमध्ये तुमचं आमच्या सगळ्यांच्याच वतीने मनापासून स्वागत. आज सुबह ही हमारे एक दोस्त थे शायद यहाँ पे बैठे हुए, उन्होंने मुझे बोला कि वैभव सर आप ज्यादा कुछ बोलते नहीं है क्या, तो उनको जो एक राज बताने वाला था, मैं ज्यादा बोलता नहीं. अब वो मुझे ओपनली सीक्रेट करना पड़ेगा कि मेरी हिंदी ऐसी है कि क्या मैं जो बोलता हूँ सामने वाले को समझ में थोड़ा सा टाइम लगता है. लेकिन फिर भी अचानक से यहाँ पे मेरा नाम लिया, मैं यहाँ पे आया क्योंकि है ना, कारगिल के लोगों की पेशेंस लेवल ज्यादा है, इसलिए मुझे अभी हिंदी में बोलने का डर नहीं लगता. यहाँ के लोगों की पेशेंस लेवल बहुत अच्छा है. कुछ देर पहले हमारे नसीर भाई ने उनके प्रेजेंटेशन के पहले एक बात बोली थी कि देश का बच्चा बच्चा कारगिल को जानता है. उस वक्त मेरी भावना ऐसी थी कि देश का बच्चा बच्चा कारगिल को सिर्फ जानता नहीं, देश का बच्चा बच्चा कारगिल के सामने झुकता है. ये कारगिल शौर्य की भूमि है, ये त्याग की भूमि है, ये कर्तव्य भावना की भूमि है. मुझे आप लोगों से शेयर करने में ये अच्छा लगेगा. मैं शायद 9वीं में था, 9th स्टैंडर्ड में था, पूना में पढ़ता था. हमारे क्लास के बाजू में एक स्टडी थी. जून महीने में मैं वहां पे अखबार पढ़ने जा रहा था और पढ़ के मुझे कहीं पे तो एहसास हुआ कि यार ये देश के प्रति मेरा कुछ तो काम है, मैंने कुछ तो करना चाहिए. लेकिन बीच में 20 साल गए कि जब मुझे कल मौका मिला उन लोगों की श्रद्धांजलि अर्पित करने का उनके स्मारक के सामने. 20 साल लगे. एकदम स्पीचलेस मोमेंट थी. अभी मैंने जैसे कहा कि ये शौर्य की भूमि है, त्याग की भूमि है, लेकिन ये 2 दिन मुझे पता चला कि ये सिर्फ शौर्य और त्याग की भूमि की नहीं है, बल्कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो भूमि है अपना एक पूरा देश का रिप्रेजेंटेशन कारगिल करता है. अगर सुनिए कैसा हो सकता है कि यहाँ पे अपने जवानों ने बड़ी देशभक्ति दिखाई, अपने देश की जो एक पेट्रियोटिज्म की भावना है वो कारगिल रिप्रेजेंट करता है. वो सिर्फ जवानों के लिए नहीं है, यहाँ के जो नए खिलाड़ी है, आज सुबह जब हम वो स्नो स्कीइंग देखने गए, वहां पे बस से यहाँ के प्लेयर्स आ रहे थे. वो प्लेयर्स गाड़ी में कम और गाड़ी के ऊपर ज्यादा बैठे थे. उसका रीजन ये था, उनके सबके हाथ में वो फ्लैग्स थे और उनमें सबसे आगे अपना देश का जो तिरंगा झंडा है वो लहरा रहा था. और सब बच्चे भारत माता की जय, वंदे मातरम की घोषणा देते थे. तो ये अपने देश की जो पेट्रियोटिज्म, ये जो राष्ट्रभक्ति भावना है, ये कारगिल रिप्रेजेंट करता है. द्रास की भूमि अगर देशभक्ति सिखाती है तो आज हमने सुरू वैली दिखी. ये जो सुरू वैली है ये अपनी देश की सुंदरता रिप्रेजेंट करती है. आज हमने एक बौद्ध जी का वो जो बड़ा वाला स्टैचू देखा, नामों के बारे में बहुत बुरा हूं, मैं भूल जाता हूँ नाम, लेकिन वो जो बौद्ध जी का जो स्टैचू था वो अपने देश की परंपरा और अपनी हिस्ट्री दिखाता है. कल हम आर्यन भूमि देखने वाले हैं, वो भी हमारी परंपरा दिखाता है. यानी देश की परंपरा, सुंदरता, अखंडता, वीरता, ये सब चीजें दिखाने वाली है कारगिल की भूमि है. तो मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि जैसे अभी हमारे अभिजीत पाटिल सर ने बताया इस बॉलीवुड एंड फिल्म टूरिज्म, वैसे उसी तरीके से मुझे लगता है कि कारगिल की भूमि ये एक नेशनल लैंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन इस नाम से आगे लाके जा सकती है. शायद अपने देश का ये सबसे पहला प्रोजेक्ट होगा कि जहां पे ये भूमि राष्ट्रीय एकात्मता की भूमि ऐसे हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उस तरीके से यहाँ पे कुछ चीजें ला सकते हैं.
नजीर साहब के प्रेजेंटेशन में उन्होंने अपनी कारगिल के एसेट्स क्या है वो भी उन्होंने बताई, लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये यहाँ पे हमें शौर्य दिखता है, सुंदरता दिखती है, अखंडता दिखती है, अपनी परंपरा दिखती है। उसी तरीके से यहाँ की सबसे मेन एसेट जो मुझे ये 2 दिनों में मेरे दिल को छू गई वो ये है कि यहाँ के जो लोग हैं वो लोग, यहाँ की ये जो बुलंद पहाड़ियां है, बड़ी बड़ी पहाड़ियां, यहाँ के लोगों का दिल भी वैसा ही पहाड़ियों जैसा मैंने देखा। वो जो सफेद पहाड़ा बर्फ रहता है वही शुभ्रता इन लोगों के मन में हमने देखी और सोची। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन्हीं लोगों को साथ लेकर यहाँ पे हम जैसे लोग जो है, हम यहाँ पे हमारा खुद का एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमारे भाई ने बोला कि जैसे आप बोलते नहीं, आप ऐसा हिंदी तो एक प्रॉब्लम है ही, लेकिन हम बोलने में हम बोलते कम है, काम ज्यादा करते। तो मैं सुखदेव सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि यहाँ पे कोई अगर गांव हो कि जिसको हम सबसे मॉडल गाव, एक जैसे आपल्या महाराष्ट्रात आहे हिरवे बाजार आहे, राळेगण सिद्धी आहे, ऐसा एखादा ऐसा कोई रोल मॉडल गांव यहाँ पे अगर कुछ करना हो तो आप हमें अपॉर्चुनिटी दें, हम यहाँ पे पूरा दिल लगा के काम कर सकते हैं। ऐसा स्कूल हो, आज हमें एक स्कूल टीचर मिले, सद्दाम सर है, उनकी जो बोलने की जो इंटेंसिटी थी वो हमारे दिल को छू रही थी कि एक आदमी कितना कुछ देना चाह रहा है, कि वो टीचर भी है और यहाँ पे अलग अलग वॉलेंटियर्स भी लाना चाहते हैं। यहाँ पे जो एसेट बोलते हैं कि कोई भी गांव, कोई भी लैंड अगर आगे जानी हो तो वहां का जो यूथ है, तो पिछले 2 दिन में मैं देख रहा हूँ हमारे अशरफ भाई रहे, हमारे काचू जी रहे, इतने जी दिल तोड़ के दिल ये काम कर रहे हैं ना कि ये यहाँ की एसेट है। तो आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, सिर्फ मेरी 3-4 ही बातें हैं। एक तो कारगिल कभी भी हमें बुलाए, हम पूरे स्ट्रेंथ से यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे एज अ वॉलेंटियर काम करेंगे। यहाँ पे एजुकेशनल फील्ड में कुछ करना हो, पूरे देश से अगर कुछ एक्सपर्टाइज वॉलेंटियर्स यहाँ पे अपने यहाँ के बच्चों को पढ़ाने के लिए लाने हो तो उसके लिए हम जरूर 100% हमारे एफर्ट्स देंगे। अगर ये सिटी को, ये लैंड को अगर हम नेशनल इंटीग्रेशन की लाइन उस तरीके से अगर देश के सामने आ रह सकते हो तो मुझे लगता है ये बहुत अलग चीज होगी। जम्मू कश्मीर और उसके बाजू में ये लद्दाख और ये कारगिल की जो भूमि है, जब वो लैंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन बनी जाएगी तो ये सिर्फ देश में नहीं, ये पूरे वर्ल्ड वाइड इसका नाम रहेगा। तो उसके लिए अगर कुछ करना है तो उसके लिए भी अब हमारा पूरा तन मन धन देके काम करेंगे। यहाँ पे अलग अलग कुछ छोटे छोटे इवेंट्स हो सकते हैं। अभी मैं देख रहा था कि ये कारगिल की जो भूमि है, हमारे महाराष्ट्र और कारगिल का तो रिश्ता बहुत पुराना है। यहाँ के बहुत से बच्चे पुणे में, महाराष्ट्र में पढ़ने को आते हैं। वैसे यहाँ के बहुत ट्रेकर्स, बहुत बाइक एक्सपेडिशन करने वाले लोग यहाँ पे आते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है क्यों ना पूरी दुनिया की सबसे बड़ी बाइक एक्सपेडिशन ये कारगिल में अरेंज हो, जिसका रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में हर साल मेंटेन रहे। यानी ये यहाँ पे हो सकता है, ऐसी बहुत सी चीजें हो सकती है। सिर्फ ये शुरुआत है। कल मैं परसों पहली बार कारगिल में आया। अब मुझे ये लगता है कि ये हमारी एक अलग सी एक कर्म भूमि भी बन सकती है। उसके लिए सिर्फ आपका सहयोग और सहकार्य चाहिए। इतना ही बोलता हूँ और आगे हम बोलेंगे नहीं, काम करते रहेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। हमारे अब्बास भाई, ये यहाँ की स्ट्रेंथ है, ये हमारी गाड़ी के ड्राइवर है। अब्बास भाई हाथ ऊपर करो। जब गाड़ी चलाते हैं ना तो मुझे हर बार यही महसूस होता है कि यहाँ की स्ट्रेंथ है। यहाँ के काचू जी, आशरफ जी, कुछ नहीं चाहिए ये लैंड आगे लेके जाने के लिए। तो ऐसे ही यूथ यहाँ पे है। अभी ऐसे ही यंग लीडरशिप ये कारगिल को मिल गई है। तो साथ में काम करेंगे, साथ में आगे बढ़ेंगे और हमारा कारगिल का नाम पूरे वर्ल्ड के नक्शे पे आगे लेके जाएंगे। धन्यवाद।
explored in a better way, because its hidden potential cannot be fathomed. It requires a lot of effort to do that. Now, I would like to call upon Mr. Hamza Ali to come up here on the dais to share your experience with our distinguished guests. Say to all of you, before I start my experience to share with my friends from Maharashtra and from different parts of India who have come all the way to Kargil, I would say something that is in my own language, because I love to speak my own language when I am with some friends like you and all. So it's a small few words just to make sure that everybody should love their own language. Everybody should love their own motherland. Everybody should love their dresses and all that. So the theme of this event is to promote tourism, to promote culture, to promote adventure, to bring people here to showcase their whatever we have, the treasure. Is everybody talk about Kargil. Everyone knows that Kargil has a lot to offer. But before that, I will start something. Yeah. Chalavale mikuyo parule, chalavale mikuyo parule, male male kyo nunga shirato budo jodanga thon. Chalavale mikuyo parule, chalavale mikuyo parule, mi watanyo nunga shirato budo jodanga thon. So this is just I want to, and everybody should come forward to work and to give your best to your motherland as well as to the mother country, India. So this is I have been working in tourism. DC Saab knows that I am from the childhood. Rashi Saab knows DC Saab is new. SSP Saab is new to us. I would like to introduce, because I've been born and brought up in a small village, a place called Paksir in a remote area. So I started my career in 1986 as a tourist guide from Zanskar. As everybody talks about Ladakh and Kargil, I feel surprised sometimes because we are all Ladakhi after all. I would remind all of my friends from Maharashtra, we should talk about Ladakh. We should not talk about individually Leh Ladakh or anything else. We are Ladakhis. Leh is a headquarter. Kargil is a headquarter too. So we are all Ladakhis. This has been given, the name is being given by tourism or whatever the people, those who are related with tourism. So I really feel shame. But I would like to tell you, I feel proud that I'm from this Bhumi. As everybody said, Bhumi. I start my career from Zanskar. Zanskar is the paradise of adventure. I don't remember the name of that particular area. So when we talk about Kargil, it is impossible. We don't have enough time to explain, because we need to give chance to everyone to speak a little bit. So I would rather prefer to shorten my speech instead of telling everything. But it is very important for all of us to let you know what we have. If you will take an example, we on the way back we stopped in Mulbek. You know that place? That is not the Chamba only. There are so many caves. There is a cave monastery, Mulbek Cave Monastery. If you go, there is another Zong Monastery, which is you have to trek about 2 to 3 hours trek. One of the most beautiful cave monastery we have in Mulbek. We have another that is in Mulbek or Wakha. There is another monastery that's also a cave. And then we have nunneries in Mulbek. And there are a lot of things we have to offer tourism. That's only one place where I'm talking about. You need to spend more than 1 day. As far as you talk about adventure, we have a lot of treks over there also. If you take an example of Suruveli, Suruveli itself has so many things to offer. For example, the highest peaks we have we earlier were in Jammu and Kashmir, but now in UT Ladakh. But in this northern region, you can say, apart from Nunkunbia, there is another White Needle peak. In Sulu Valley, last year they have introduced another surprising thing. That what's the name of that spring coming out? That's unbelievable. You know, you must see. I have got the videos. I'm going to show you the presentation with how Kargil looks during winter, how Kargil looks during summers,
and what is our culture, and so many things which I'm going to show you in presentation. But in the meantime, is DC Saab, CC Saab, SSP Saab, all our honorable executive councillors are all here. But we all of us have to work together to promote Kargil. It is not one man who can change the entire the system. Everyone has to put her own efforts to promote tourism in Kargil. DC Saab and CC Saab, I would like to request you that we have a lot of things we need to change in Kargil town itself. We have to organize the system of our, you can see, so-called shops. Every second place we have different shops. We need to organize, and we need a lot of changes in town itself. We need to have signboards everywhere, which is really important. We need to have a place where we can just fix up a welcome signboard to Kargil. A lot of things we have to do. As somebody said, that we need to train, as Anil Bhai said, that we need to train our guides. We need to train our drivers how to serve our guests, those who are coming from abroad. So a lot of things which we have to work together, and I hope in future we will all together promote Kargil as a destination. Kargil has a lot to offer. As Sunil Bhai said, we should not compare Kargil with any other destination. Kargil has far better, you can say, things to see. I'm going to show you in a minute. So in the meantime, and I would like to appreciate everyone, especially our President, Akka President Ashraf Ali, Vice President Nasir Munshi, and entire team. Since last 4 years, they have been working very hard to bring Maharashtra in Kargil. They was a really great effort. And I would also say thank you to Maharashtra Tour Station of Mumbai. They have been doing their best. But apart from Maharashtra, I hope, and we are trying our level best, and we are doing individually also, all of our stakeholders, Ashraf Saab and Nasir Saab, and everyone, all the stakeholders to come forward, and we should plan accordingly. First of all, I would like to request you, but I'm so sorry, I start speaking in English, but in this kind of gatherings, we should use our own mother tongue. And we use our traditional dresses and all that whenever you have meetings and all these things. So I would like to show you one presentation first. I hope you will not get bored. Please give me 2 minutes. ACTA and other associations, so that we can smoothly work together. And I would like to request ACTA members also, to Honorable CC Saab and DC Saab also. We have several plans lined up. I'm planning to organize few events in Kargil in coming year, inshallah. Apart from marathon. That is also by the help of Department of Tourism, Government of India. And one is related to our culture, which I wanted to organize a event on the basis of all the multi-religion and multi-cultures and all that. So I need your support. I'm sure soon I'm going to write you about all these things which we are going to organize. But in the meantime, I would request both of you as well as AD tourism and director tourism as well. So we must start few things which are very important to train our taxi drivers, our hoteliers. We need some tour guides as well, and the bus drivers, in fact. And we need to create a atmosphere where it should be a tourism-friendly atmosphere. And also we need to organize some workshops in some remote areas, not on the villages or so on, but I think we should organize in big schools and colleges. I will get some experts from Delhi or even from Maharashtra. I can request somebody to come. So we should train people in the countryside area so that how to behave with the tourists and all that, how to welcome them. So once again, I would like to thank you very much personally listening. I missed, this is one of the best video. Presentation is gone. I think some technical issue was there. So I'm going to send this to all of you as well. This I prepared for Maharashtra and Gujarat. I'm going to soon, because we are going to organize jointly this big events, 2 events in Kargil. Thank you very much for patiently listening. Thank you very much. Distinguished guests are requested to kindly don't get bored, as only few speakers have left here.
Now, without wasting our precious time, I would like to call upon Mr. Ashraf Ali, President All Kargil Travel Trade Association, to kindly come up here on the dais to express your views. Chief Executive Councillor Shri Kacho Firoz Ahmad Khan Sahab, Honorable Executive Councillor for Tourism Shri Yusuf Rashi Sahab, Honorable Executive Councillor for Health Shri Ali Chandan Sahab, Honorable Councillor Agha Abbas Sahab, our worthy District Magistrate Shri Santosh Sukhdev ji, welcome to Kargil sir. Worthy ADC Shri Singh Group Sahab, worthy Additional SP Tabar Hussain Sahab, and our dearest and our boss, our worthy Tourism AD Shri Agha Taha Sahab, worthy officers of our district, from various parts of our country who have arrived here for promotion of Kargil as a tourist destination, and all other distinguished guests present over here, my heartfelt greetings to all of you and a very warm good evening. I, on behalf of our association, would first of all like to express my deepest gratitude to LHTC Kargil, headed by its Chief Executive Councillor Shri Firoz Ahmad Khan Sahab and Honorable Tourism Executive Shri Yusuf Rashi Sahab, for planning, organizing and conducting such a beautiful event in Kargil sir, and giving our association an opportunity to be a part of this wonderful event. I also extend my deepest thanks to Shri Rizin Samsad Sahab for his all-out support in organizing this event in Kargil, and that too in this harsh, cold winter. It's a great feat, sir, in its own right, and it's one of its kind event that has ever happened in Kargil. We would also like to take this occasion as an opportunity to extend our warmest welcome to Shri Santosh Sukhdev ji for his appointment as District Magistrate in Kargil. Last but not the least, our deepest thanks to our esteemed guest from Maharashtra Tour Operator Association, headed by Shri Sudhir Patil ji. He has been a tremendous support for us wherever we have went and done our presentations and shows. Our friends in NEET, Mr. Kargil, General Secretary of ABTOI, Shri Anil Rajput ji. Our new friend, Shri Vaibhav ji from Sarhad, Didi Hasija ji. I can't name all of them as our worthy Honorable Councillor Shri Nasir Hussain Munshi has already mentioned all the names. The distinguished bloggers who have been an addition to this year's event. Thank you so much for devoting your precious time in promoting Kargil and coming over here and helping us out. That being said, I'm not going to make it too much. It was again a delightful experience for me to work with my comrades in Akhtar, especially Hasnain. He has been at the airport from 5 in the morning till 2 o'clock in the evening. My brothers, Sajjad Sahab of Chocopine and Kachu Shamim Sahab, these are all the ground workers, all the hard work. These are the guys who have done all the hard work. I thank all of you, my guys. Thank you for this support. And last but not the least, Mr. Khadim Sahab of PC Palace. CC sir, I would like to request you, it was only Khadim Sahab whose property was available right now with central heating system. He flight his cooks from Agra sir, so that our district's honor could be preserved as so many high profile guests were coming here. I think sir, it's really unjust that only in winters he is remembered and in summers he is forgotten. I request sir that special arrangement for him should be made, because he is the only guy who keeps the hotel open in winters sir. So in summers also this should be made. Honorable CC sir, we are hopeful of your continued support towards the development of tourism in Kargil in future also. And we also welcome the suggestion of many of our fellow stakeholders. Sir, last time you suggested the
setting up of a tourism advisory committee to oversee the tourism promotional activities in Kargil. That is a very good idea, sir, because the calendar now has been set. And there are so many events that a few associations cannot do it. So a proper tourism advisory committee needed to be established, sir. We strongly and firmly believe that it's a long overdue process, and the earlier it is set up, the better it is, sir, from a tourism perspective. In fact, if it is set up before the 21st March promotional events, then it will be really great, sir. We extend our all-out support, whatever initiative your kind self may undertake in order to develop the tourism potential of Kargil. We have been really fortunate, sir, that you are at the helm of the affairs in Kargil, and we really appreciate the support our Honorable Executive Councillor Shri Gunsokta she has given us. And last but not the least, our worthy bureaucrats, Mr. Khadim Sahab, our RT officer, especially our CMO. Sir, they have all done so much tremendous work in making all these events a success. Kanis, she has been such a great help, sir. I really want to appreciate my thanks for making this event a success. Thank you so much, everyone, and I hope and wish that you all will have a wonderful evening. Thank you so much. I have scarcity of words, so here I am remembering a few lines from the song sung by the famous Canadian rock singer Bryan Adams. Sometimes words are hard to find. I am still looking for that perfect line to let you know that you are always in my mind. So with this, I'd like to request our worthy Deputy Commissioner cum Chief Executive Officer LHDC Kargil to kindly come up here on the dais to share your valuable thoughts with our distinguished guests. Worthy Deputy Commissioner. Ladakh Autonomous Area Development Council, Shri Firoz Ahmed Khan Sahab, Honorable Executive Councillors, Honorable Councillor, District Officers, महाराष्ट्र और भारत के विभिन्न भागों से आए हुए टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री के मेरे साथी, यहाँ उपस्थित करगिल के मेरे भाई बहन, गुड इवनिंग, आदाब, जूनियर। सबसे पहले तो मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस लद्दाख विंटर कॉन्क्लेव का हिस्सा होने का हिस्सा हुए आप सब, और आप सबकी स्पीचेस और इंटरेक्शन सुनते हुए मुझे बड़ी खुशी हुई कि आपके दिल में करगिल के लिए इतना कुछ कर गुजरने की इच्छा है, तमन्ना है, डिज़ायर है। और जिस हिसाब से महाराष्ट्र के लोगों ने यहाँ पे बातें रखी अपनी, बहुत प्राउड भी फील हुआ और बहुत खुशी भी हुई कि मैं यहाँ पे हूँ। आप लोग मैक्सिमम टूरिस्ट जो करगिल में आता है सारा महाराष्ट्र से आता है, तो मैं चाहूँगा कि हम साथ में मिलके इसको और एक्सप्लोर करें और ज़्यादा बढ़ाएं। श्री अनिल राजपूत साहब ने बहुत इम्पोर्टेंट बात रखी थी कि हम डॉक्यूमेंटेशन और राइटिंग नहीं करते चीज़ों के बारे में, और जिसको देख के या जिसको पढ़ के ही लोग एक्सप्लोर करने के बारे में सोचते हैं, क्योंकि उनको जब तक नॉलेज नहीं होगा चीज़ों के बारे में वो आएंगे नहीं यहाँ पे। तो सर मैं आपको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि हम इस पर काम करेंगे, ध्यान रखेंगे कि हम डॉक्यूमेंटेशन करें, चीज़ों के बारे में, नई नई जगहों के बारे में एक्सप्लोर करें और बाहर के लोगों को, यहाँ के लोगों को जागरूक करें हमारे वेबसाइट के थ्रू, हमारे सोशल मीडिया अकाउंट्स के थ्रू। इसके बाद राजा अभिजीत पटेल सर ने बहुत अच्छी बातें रखी कि करगिल को हम प्रिफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन फॉर फिल्म इंडस्ट्री बना सकते हैं, क्योंकि जितनी वैरायटी और जितनी जगह है यहाँ पे, मुझे लगता नहीं कि इंडिया में कहीं पे भी है। नासिर साहब ने जैसे कहा था कि इट्स अ हिडन ट्रेजर ऑफ लद्दाख, सर आई वुड लाइक टू करेक्ट यू कि इट्स अ हिडन ट्रेजर ऑफ इंडिया, बिकॉज इतनी वैरायटी जो आई डोंट थिंक कहीं पे मिलेगी। रिलीजियस टूरिज्म है यहाँ पे, एडवेंचर टूरिज्म है, अब विंटर्स में मतलब ईयर के किसी भी सीजन में आके आप पे टूरिज्म का और मौसम का आनंद ले सकते हो। इसके बाद वाघ साहब जो सरहद के लिए काम करते हैं, आज ही संजय नाहर साहब से मेरी बात हुई थी। इन्होंने कश्मीर वैली में बहुत अच्छा काम किया है गर्ल चाइल्ड एजुकेशन के लिए, जो मिलिटेंट्स या जो हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज के लोग शहीद होते हैं उनके बच्चियों को पढ़ाते हैं और उनको स्पॉन्सर करते हैं एजुकेशन के लिए महाराष्ट्र में। इन्होंने सुबह प्रपोजल भी किया था और अभी भी डिस्कस किया वाघ साहब ने कि यहाँ की कोई विलेज अडॉप्ट करेंगे एंड बाकी जैसे कि एजुकेशन के लिए एजुकेशन फील्ड में काम करते हैं। तो मी तुम्हाला सांगू शकतो की आपण सोबत मिळून काम करू आणि नक्की खूप चांगलं काम होईल।
उन्होंने और एक बात कही थी कि लद्दाख करगिल को हम लैंड ऑफ नेशनल इंटीग्रेशन के रूप में विकसित कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं, मार्केट कर सकते हैं। तो इस बारे में भी हम काम करेंगे, इसके लिए भी एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद सुधीर पाटिल साहब ने एक्सक्लूसिव करगिल की बात की। तो यस, करगिल हैज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल। इसको 2-3 चीज़ों की बहुत ज़रूरत है मुझे लगता है। जैसे आप सबने भी बात की कि एक अगर यहाँ पे एयरपोर्ट बन जाता है, फंक्शनल एयरपोर्ट जहाँ पे डोमेस्टिक एयरलाइंस और बाकी सारी चीज़ें आएगी, तो आप सबको श्रीनगर से आने की या लेह से आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप एक्सक्लूसिव करगिल के लिए सिर्फ करगिल को एक्सप्लोर करने के लिए आ सकते हो। संस्कार, द्रास, हमारे बहुत सारे एरियाज है जहाँ पे आप खुद आ सकते हो। उन्होंने और एक बात कही थी की आपला माणूस आता कारगिलमध्ये, मी म्हणेन की तुमचा हक्काचा माणूस कारगिलमध्ये आहे, तुम्ही कधी पण या, तुम्ही तिथे आहे काम करायला। बाकी बहुत देर हो चुकी है, 9:30 को हमारा प्रोग्राम कंक्लूड होना था। बाकी बातें भी करनी थी बहुत सारी, बट मैं आपको विश्वास दिलाऊंगा कि मैं आप सबके कांटेक्ट में रहूँगा। जो भी ट्रैवल टूर इंडस्ट्री के मेरे साथी हैं, यहाँ के ऑफिसर्स हैं, यहाँ के लोग हैं, यहाँ के एसोसिएशन है, और हम करगिल को एक प्रिफर्ड टूरिस्ट डेस्टिनेशन, टॉप टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने के लिए काम करेंगे। थैंक यू सो मच। और मेरा फर्स्ट पब्लिक मेरी भी फर्स्ट पब्लिक मीटिंग ही है, बिकॉज मैंने भी सैटरडे को ही ज्वाइन लिया, सैटरडे को ही चार्ज लिया है यहाँ पे। तो थैंक यू सो मच, बड़ा अच्छा लगा सारे। So now, yesterday was a dream, tomorrow is a vision, but a day well lived makes every yesterday a dream of happiness and every tomorrow a vision of life. So carrying the same vision, may I now request our chief guest of the occasion, Honorable Chief Executive Councillor LHDC Kargil, Shri Feroz Ahmad Khan Sahib, to kindly come up here all the days to share your thoughts with us. Executive Councillor Tourism Engineer Mustafa Sahib, Honorable Executive Councillor Health Ali Chandan Sahib, Worthy Deputy Commissioner Chief Executive Officer LHDC Kargil Janab Santosh Sukhdev Sahib, हमारे एडिशनल डिप्टी कमिश्नर मुतुब साहब, एडिशनल एसपी इफ्तिखार तालिब साहब, हमारे करगिल ट्रैवल एंड ट्रेड केयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट अशरफ अली साहब, हमजा साहब, बाकी यहाँ पे जितने भी हमारे डिस्टिंग्विश गेस्ट जो बाहर से यहाँ पे तशरीफ लाए हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर्स, हमारे आर्टिस्ट जो यहाँ पे अभी परफॉर्म कर रहे थे, मैं सबसे पहले LHDC कारगिल की तरफ से आप सबको यहाँ पे वेलकम करता हूँ। मुझे वो शाम याद आ रहा है कि जैसे अगस्त में हमने कहा था 2019 में मोस्ट ऑफ जो यहाँ पे आए हैं गेस्ट वो यहाँ पे तशरीफ लाए थे, और ऐसा ही फंक्शन हमने यहाँ पे इसी हॉल में किया था। तो तब से लेकर आज तक काफ़ी समय हुआ, लेकिन बदकिस्मती से उस बीच में हमारे सामने बहुत से चैलेंजेस भी आ गए, जिसमें से सबसे बड़ा एक चैलेंज हमारे लिए जो था कोविड-19 का, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो सिस्टम है उस पर इफ़ेक्ट हुआ, जिसकी वजह से जो हमारे जिस चीज़ को हम आगे लेना चाहते थे और जिस स्पीड से लेना चाहते थे उसमें एक ब्रेक हुआ। तो अब हमें उम्मीद है, हम ये आशा करते हैं कि आने वाले समय में आपका अभी जब भी हमारे टूरिस्ट सीज़न शुरू हो, एक अच्छा शुरुआत हो, और जिस लगन से और जिस मेहनत से हमारे जो टूरिस्ट ऑपरेटर जो बाहर से करगिल को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें बढ़ावा हो, और ख़ासकर हमारे जो यहाँ पे जो हमारे ट्रैवल एसोसिएशन, हमारे होटलर्स जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, उस मेहनत का फल जो है हम लोगों को मिले, ये हमारी दुआ है। बाकी करगिल के बारे में मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे से ज़्यादा ही आप लोग अभी कह रहे हैं कि करगिल में क्या खूबी है। तो अभी हम कम से कम इस बात को सुन के बहुत खुश हो रहे हैं कि जो हमारे लीडिंग ट्रैवल एजेंट्स हैं इंडिया के, उनको ये एहसास हो गया है कि करगिल कितना टूरिस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन अब जो है वो बन चुका है। तो मुझे उसमें ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है, अलबत्ता मैं इतना कुछ चीज़ें यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा। जब से मैंने चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर संभाला है, फर्स्ट टाइम मेरी मीटिंग हुई थी आपके जो ट्रैवल एजेंट्स थे हमारे करगिल के लोकल और हमारे होटलर्स, मैंने उनको ये कहा था कि इसमें गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता है। अगर आपको प्रमोट करना है टूरिज्म को, तो जब तक प्राइवेट सेक्टर में लोग नहीं आएंगे, जब तक आप लोग आगे नहीं बढ़ेंगे, हम जो हैं आपको सिर्फ एक सपोर्ट कर सकते हैं, बाकी हम लीड रोल नहीं ले सकते हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट हमारा लीड रोल ले सकते हैं, लेकिन
बाकी चीज़ों में जिस तरह से 2 साल पहले या 3-4 साल पहले हमारी करगिल की टीम आपके बम्बई गई, उसके बाद फिर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री गए, हमने फंडिंग का अरेंज किया, उनको ऑर्गेनाइज किया आपका, तब जाके आहिस्ता आहिस्ता ये जो प्रमोशन शुरू हुआ आपका। अदरवाइज टूरिज्म डिपार्टमेंट तो आपका 1970 से यहाँ पे, लेकिन प्रमोट तब हुआ जब हमारे यहाँ के लोकल ट्रैवल एजेंट्स जो है वो बाहर आए। आप लोग बाहर के ट्रैवल एजेंट से जब आपका इंटरेक्शन हुआ तब जाके हमारा ये जो है प्रमोट होना शुरू हुआ। तो आज के डेट में भी मेरी रिक्वेस्ट यही है कि हमारे जितने भी ट्रैवल एजेंट्स या होटलर्स हैं या जो भी इस टूरिस्ट इंडस्ट्री से जुड़े हुए हमारे लोग, चाहे वो लेह में हो या कारगिल में हो, आप लोगों को आगे आना पड़ेगा। आप लोगों को सपोर्ट करना जो है हमारे गवर्नमेंट का हो चाहे काउंसिल का हो, वो हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको सपोर्ट करें, लेकिन आप लोगों को आगे आगे प्रमोट करना है। तो पहले अभी यहाँ पे अशरफ साहब ने कहा, अब हमें यहाँ पे एक जो जरूरी चीज यहाँ पे जो हमें महसूस हो रहा है एडमिनिस्ट्रेशन में बैठ के या काउंसिल में, वो ये है कि हमको यहाँ पर एक एडवाइजरी कमेटी का होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि आप इतने सारे इवेंट्स हम ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे हमारा पूरा साल का कैलेंडर बन चुका है अभी, कि हमारे क्या साल में उसका एक कैलेंडर जो है, लेह का अपना कैलेंडर, करगिल का अपना कैलेंडर, वो सारा कैलेंडर बन के हमें तैयार हुआ है। लेकिन उस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने के लिए जब तक एक कमेटी हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं करेंगे, अदरवाइज ये हर कोई अलग अलग तरीके से होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि हम उस चीज में सफल हो पाएंगे, क्योंकि प्रोफेशनलिज्म इसमें होना बहुत जरूरी है। आपका एडवाइजरी कमेटी हमें वो एडवाइज करे हर इवेंट के साथ कि इस इवेंट में किस प्रोफेशनल को हमें लगाना है या दूसरे इवेंट में किस तरह लगा। जैसे हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट है, अभी हर किसी ने कहा कि यहाँ पे हमारे टैक्सी ड्राइवर को ट्रेन करने की जरूरत है या बस ड्राइवर को ट्रेन करने की जरूरत है, ट्रैवल या ये उन्हीं तक महदूद है। अगर टूरिज्म फ्लोरिश होता है तो आपका रेड़े वाले से लेकर, सब्जी वाले से लेकर, आपका दुकानदार से लेकर, गाड़ी वाले से लेकर, यानी हर कोई आदमी आपके इसके साथ जुड़ा हुआ है। और अगर आपका टूरिज्म हमारा बूस्ट होता है तो नेचुरली हमारे यहाँ की इकोनॉमी जो है बूस्ट होगा। जब हमारा इकोनॉमी बूस्ट होगा, हर किसी का जब इकोनॉमी बूस्ट होगा तो नेचुरली वो अपने बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे सकता है, अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकता है। तो इसलिए हमारा मेन फोकस इस पर है कि हम किस तरह से टूरिज्म को यहाँ पे प्रमोट करें। बाकी डेस्टिनेशंस के बारे में या बाकी और चीज़ों के बारे में तो यहाँ पे हर किसी ने बताया कि हमारे यहाँ पे कितना रिच है, करगिल को एक्सप्लोर करने की जरूरत है। और यहाँ पे अलग अलग, अगर आप सुरु वैली जाएंगे टोटली डिफरेंट, आप संस्कार में जाएंगे टोटली डिफरेंट, यहाँ आप आर्यन में जाइए, शरगोल में जाइए, द्रास में जाइए। और यहाँ पे सबसे ज्यादा एक स्कोप जो हमें उभर के आ रहा है वो है आपका विंटर स्पोर्ट्स एंड विंटर टूरिज्म। विंटर स्पोर्ट्स को हमको विंटर टूरिज्म के साथ जोड़ना बहुत जरूरी है। तो ये सारे चीजें हैं, लेकिन एक चीज की यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे जो हमें मुश्किलात ये है कि जिसकी वजह से हमें, चाहे वो टूरिज्म सेक्टर हो चाहे हमारे आम आदमी का क्यों ना हो, विंटर्स में जब यहाँ पे टूरिज्म मंत्री साहब भी आए थे, हमने भी कहा कि हमें ये सारा प्रमोट करने के बाद हमारा प्रॉब्लम है कनेक्टिविटी। जब तक आप हमारे एक कनेक्टिविटी में, बार बार हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी यही कहता हूँ कि जितना भी आप कहें, जब तक ना हमारा कनेक्टिविटी नहीं होगा, हमारे ये सारे चीजें जो है स्ट्रीमलाइन या इसको प्रमोट हम नहीं कर सकते। इसलिए हमारी ये गुजारिश है आपके जितने भी हमारे यहाँ पे जो लीडिंग ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिस तरह से अभी नेपाल की बात की, जिस तरह से अभी भूटान की बात की, हमारे प्राइवेट जो एयरलाइन हाउसेस हैं, उनसे आप लोग इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हमारा एयरपोर्ट भी शायद आप लोगों ने देखा होगा स्टेट पे, आपका यहाँ पे छोटे प्लेन यहाँ पे आराम से उतर सकता है। आपको ये कहते हैं कि जहाँ पे अगर ऐसे हम चलाएं तो कमर्शियल अवेलेबिलिटी नहीं है या वन साइड एरिया आता है। तो लेकिन हमारे टूरिज्म मंत्री साहब ने जो हमारे यहाँ पे पब्लिक में ये कमिटमेंट करके गए हैं कि जो गैप फंडिंग होता है वो टूरिज्म डिपार्टमेंट जो वो बियर करेगा। तो इसलिए हमारे आपसे ये रिक्वेस्ट है कि हम अपने लेवल पे, चाहे वो पॉलिटिकल साइड में हो या आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से हो, हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी सूरत में यहाँ पे छोटे एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट हो। तो आप लोगों से भी हमारे रिक्वेस्ट है, अगर कोई ऐसा हाउस हो तो आप उनको हमारे साथ कांटेक्ट में कर सकते हैं, हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ बात कर सकते हैं। अभी पवन हंस के हमारे हेलीकॉप्टर्स यहाँ पे चल रहे हैं, आपका उसका पूरा सब्सिडाइज जो है आपका यूटी एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पे दे रहा है। तो उसी तरह हम जो है वो एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो हमारा मेन फोकस जो है हर किसी का ये है कि हमें किसी भी सूरत में इस कनेक्टिविटी को बढ़ाना होगा, तब जाके हमारा जो टूरिज्म जो है वो फ्लोरिश होगा, उसमें हम लोग सब लगे हुए हैं। तो मैं आखिर में आपका एक बार फिर आपका इस विंटर कॉन्क्लेव को
ऑर्गेनाइज करने में अपने यूटी एडमिनिस्ट्रेशन, एलजी साहब और पर्टिकुलरली हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी रेगजिन समफेल साहब, उनके साथ जो भी जुड़े हुए हैं, हमारे यहाँ के टूरिज्म डिपार्टमेंट, हमारे यहाँ पे जितने भी जो हमारे करगिल के जो ट्रैवल एजेंट्स हैं, जिसको लीड कर रहे हैं हमारे अशरफ अली साहब, उनका मैं बहुत ही मशहूर हूँ, सब उनके पूरे टीम का, कि उन्होंने ही उनकी मेहनत की वजह से हमारे ये कामयाब हुआ। हमारे यहाँ पे टूरिज्म के एडी साहब हैं, उसके अलावा हमारे जो आर्टिस्ट जिन्होंने यहाँ परफॉर्म किया। मुझे लगता है कि हमें टूरिज्म को प्रमोट करते करते हमें अपने कल्चर को भी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि जब इस कल्चर को भी हमें जिंदा करना है और कल्चर को भी हमें फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमारा कल्चर होगा, हमारी आइडेंटिटी होगी, तभी लोग जो है आपका, जब अभी हमारे पास कल्चर होगा, हमने कुछ प्रेजेंट किया यहाँ पे, अगर हमारा कल्चर ही खत्म हो जाए तो टूरिस्ट किस चीज को देखने के आएंगे। मतलब कुछ चीजें तो हमें कल्चर को भी देखने के लिए आते हैं। तो हमारा फोकस ये है, हमने फिर उस दिन भी मैंने यहाँ पे कहा था कि टूरिज्म को प्रमोशन में बेशक हम लगे हुए हैं। तो इस साल जो है हमारी ये मेरी कोशिश है, हमारी पूरी टीम की, हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल की, कि जिस तरह से हमने आपका कैपेक्स में आपका टूरिज्म के लिए हमने अलग अलग हेड्स जो है क्रिएट किए हैं, उसी तरह से हम प्रमोशन ऑफ कल्चर के लिए भी हम अपने बजट में एक हेड क्रिएट करेंगे, ताकि हम अपने कल्चर को प्रमोट भी करें और उसको डिवाइड भी करें। ये बहुत जरूरी है आपका, जिसमें हमारे कल्चर मीन्स सिर्फ नाच गाना नहीं है, प्रमोट हो रहा है। और इस प्रमोशन में लैंग्वेज और कल्चर प्रमोशन में हमारे रेडियो करगिल का बहुत बड़ा योगदान है। अदरवाइज हमारा ये जो कल्चर और हमारा लैंग्वेज ऑलमोस्ट खत्म हुआ था। जब रेडियो करगिल यहाँ पे आया, उसके बाद फिर हमारे जितने भी हमारे फोक लोर्स हैं या बाकी जो लोकल अलग अलग जो ट्राइब्स में अलग अलग जो यहाँ पे भाषा बोलते हैं, वो फिर दोबारा ऐसा रिवाइव हो रहा है। तो इसी तरह से हर कोई और बाकी जितने भी हमारे एसोसिएशंस हैं या यूथ क्लब्स हैं, उनको भी हमारी अपील है कि आप लोग आगे आए। हमारा पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है और हमें खुशकिस्मती ये है कि इसमें भी अल्लाह का कुछ मुझे लगता है राज है कि महाराष्ट्र के साथ हम अपना रिश्ता बनाते बनाते हमारे डीसी साहब यहाँ पे पहुँच गए। तो ये हमारा एक एम्बेसडर बन सकता है, मुझे लगता है इसमें कुछ राज जरूर है। तो इसलिए ये भी हमारी खुशकिस्मती है कि अभी डीसी साहब आए हैं यहाँ पे, और इनसे मिलके और इस महाराष्ट्र का और करगिल का रिश्ता में और भी हमें लगता है इसमें इजाफा होगा। तो फाइनली मैं एक बार फिर आप लोगों से, जो हमारे टूर ऑपरेटर्स जो बाहर से यहाँ पे आए हैं, आपने अलग अलग जगह देखे हैं, तो मुझे लगता है आपने तो बहुत पहले देखे यहाँ पे। अभी उन्होंने कहा कि 70s में 80s से आते हुए हैं, लेकिन तब से और आज में करगिल में बहुत डिफरेंस आप देखते हैं। आपका करगिल हालांकि एक छोटा सा शहर है, और टाउन को लोगों में कम से कम ये सेंस है कि वहाँ पे अपने एरिया को कम से कम वो लोग साफ रखते हैं। तो ये हमारी कोशिश होगी। और अभी यहाँ पे हमारे स्पीकर ने कहा कि हमें कम से कम ये देखना चाहिए कि टूरिज्म को अगर हम प्रमोट करते करते कहीं ये ना हो जाए कि ये ओवरफ्लो हो जाए, या कि क्या हमारी करगिल जो है इन चीज़ों को बर्दाश्त कर पाएगी, क्या हमारी इकोलॉजी इसको इन्वायरमेंट जो है बर्दाश्त कर पाएगी। तो इन चीज़ों को भी हमें मद्देनजर रखना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमें लोगों को एक अवेयरनेस भी देना है और ट्रेन भी करना है इसमें, कि टूरिज्म कहीं इसका इफेक्ट जो है कहीं उल्टा हमारे इकोलॉजी और हमारे इन्वायरमेंट को ना पड़े, ये भी हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं फाइनली एक बार फिर जितने भी गेस्ट यहाँ पे आए हैं, हमें उम्मीद है कि आप लोग जाके आगे जो है काम, जो हमारे करगिल को किस तरह से प्रमोट करना है, क्या करना है, आप लोगों को ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है। और हम चाहते हैं कि आप लोग बार बार आएँ, और हमारी तरफ से भी जो हमारे यहाँ से लोग इसमें टूरिज्म रिलेटेड हैं, वो लोग भी ज़रूर बाहर जाएंगे हमारी तरफ से। और यूटी एडमिनिस्ट्रेशन और पर्टिकुलरली हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं रेगजिन समफेल साहब का भी पूरा यही कोशिश है कि किस तरह से हम लद्दाख में, पूरे लद्दाख में टूरिज्म को किस तरह से प्रमोट करें, ये हम सबकी जो है कोशिश है। और इंशाअल्लाह रहमान हम चाहते हैं कि ऐसे प्रोग्राम्स हम और ऑर्गेनाइज करें, समर में करें, आपका ऑटम में करें, आपका स्प्रिंग में करें, अलग अलग जो है आपका जो हमारे जो सीज़न है, अलग अलग ब्यूटी है उन सब का, तो उसमें भी हम लोग चाहते हैं कि ऑर्गेनाइज करें। और हमारे जो ट्रैवल एसोसिएशन की जो यहाँ एग्जीक्यूटिव कमेटी है, उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है और हमारी एडवाइस भी है कि इस ऐसे इवेंट्स आप और भी ऑर्गेनाइज करें। और एक्सचेंज जो है जो बहुत ज़रूरी है, हमारे यहाँ से लोग ले से यहाँ आए और यहाँ से बाहर भी जाए। तो आखिर में मैं एक बार फिर आप सबका बहुत ही मशहूर हूँ, और जिसने भी इस प्रोग्राम को यहाँ पर ऑर्गेनाइज करने में साथ दिया है, खासकर हमारे जो टैक्सी वाले जो हमारे केयर कर रहे हैं, हमारे यहाँ पे हमारे जो गेस्ट का, या हमारे होटल्स जो पीसी पैलेस खादिम साहब का नाम लेके बोला है, हम उनके बहुत ही मशहूर हैं खादिम साहब के। उन्होंने इस साल विंटर में हमारे यहाँ पे इतने इवेंट्स हुए
यहाँ पे आपका जैसे टूरिज्म का हुआ, जैसे आपका एडवेंचर स्पोर्ट्स का हुआ, तो कम से कम इनका जो होटल यहाँ पे खुला रहा इस साल विंटर में, जिसकी वजह से हमें हमारे गेस्ट को प्रॉब्लम नहीं हुआ। तो मैं होटलर्स को भी, हमारे जितने भी हैं उनको भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आने वाले समय में कम से कम नेक्स्ट विंटर से आप लोग भी कोशिश करें कि पहले 1-2 साल में जरूर आपका थोड़ा सा आपके बजट में शायद नहीं आए, लेकिन आपको हमारी रिक्वेस्ट है कि अगले साल से कम हमारे और भी होटल्स हैं वो भी ये कोशिश करें कि विंटर्स में होटल को खुला रखें, क्योंकि यहाँ पे इसके टूरिज्म के अलावा भी आपके हमारे गवर्नमेंट लेवल पर इतने फंक्शंस होते हैं। जब यहाँ पे लास्ट टाइम एडवाइजर साहब आए थे तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे यहाँ पे कुछ फंक्शंस होना चाहिए विंटर में, तो उन्होंने कहा कि आप विंटर में ऐसा एकोमोडेशन हमें दे दो, हम बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स है, बड़े बड़े जो गवर्नमेंट के फंक्शंस होते हैं वो हम आधा किले में करेंगे, आधा करगिल में करेंगे। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से भी आप लोगों को ये एश्योरेंस है कि अगर आप लोग अपने होटल्स वगैरह खुला रखेंगे विंटर में, तो हमारी तरफ से ये एश्योरेंस है कि जितना हो सके हमारी तरफ से भी आप लोगों को उसका पूरा सपोर्ट मिलेगा। तो अगर मैं टूरिज्म डिपार्टमेंट का बहुत ही मशहूर हूँ कि उन्होंने बहुत अच्छा यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, और स्पेशल थैंक्स टू आवर कमिश्नर सेक्रेटरी टूरिज्म फॉर ऑर्गेनाइजिंग सच ए ब्यूटीफुल दिस विंटर जो कंक्लूव आपका ले में भी उन्होंने ऑर्गेनाइज किया यहाँ भी, और उससे पहले उन्होंने लिटरेचर फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज किया। तो उसी तरह से हमारी जो काउंसिल है, काउंसिल में भी हमारी यही कोशिश है कि किस तरह से हम टूरिज्म को जो है प्रमोट करें। हम भी हमेशा इसी चीज़ पे डिस्कस करते रहते हैं।